بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ یوم یکجہتی کشمیر پر آزاد کشمیر میں ہر سو سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ لاہور میں ریلیاں، سیمینار اور خصوصی تقاریب کا انعقاد۔ سرکاری اور غیر سرکاری اور مذہبی تنظیموں کا کشمیریوں سے اظہار یکجہتی۔ لبرٹی چوک میں یوم یکجہتی کشمیر کی تقریب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی شہداء کے لیے دعائے مغفرت، شمع آزادی روشن کی، یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ یوم یکجہتی کشمیر کی تقریب میں علامتی خاموشی اختیار کی گئی۔ کشمیر کی مناسبت سے پکچر وال کی نمائش کا انعقاد بھی۔ محکمہ اطلاعات پنجاب کی جانب سے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے لبرٹی چوک میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ شہداء کشمیر کی تصاویر آویزاں کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان، وزیر اطلاعات عظمہ بخاری، پرویز رشید شریک ہوئے۔ سمیع اللہ خان، ملک خالد کھوکر، اون چودھری، شعیب صدیقی سمیت دیگر رہنما و کارکن موجود تھے۔ شرکا نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا، میری رگوں میں کشمیری خون دوڑتا ہے، وہ دن دور نہیں جب کشمیری عوام کو بھارتی مظالم سے نجات ملے گی۔ میری تو رگوں میں کشمیری خون ہے اور کشمیر کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی شہداء ہیں ان کے درجات بلند کرے، ان کے خاندانوں کو صبر عطا فرمائے۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ کشمیریوں کے حق میں پاس قراردادوں پر عمل کرائیں۔ یہ جو زور زبردستی کے ساتھ کشمیری آواز کو دبانا چاہتے ہیں، یہ اقوام عالم، یہ دنیا دیکھے گی کہ جہاں پر یہ آواز زیادہ دیر تک جبر سے دبانے کی کوشش کی جائے، وہ جبر زیادہ دیر قائم نہیں رہتا اور حق حق ہو کر رہتا ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے شمع بھی روشن کی گئیں۔ شرکا کا کہنا تھا، وہ دن دور نہیں جب کشمیری حق خدا رادیت لے کر رہیں گے۔ پاکستان جتنا مضبوط ہوگا، تحریک آزادی اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ کیمرہ مین عباس بٹ کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ کشمیریوں سے لازوال محبت کی تجدید کا دن۔ جماعت اسلامی کا مال روڈ پر کشمیر یکجہتی مارچ۔ اسٹیٹ بینک سے ریگل چوک تک ریلی، کشمیریوں کے حق میں نعرے بازی۔ شہر بھر میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر تقریبات اور ریلیوں کا انعقاد ہوا۔ مال روڈ پر جماعت اسلامی کی کشمیری عوام کے حق خداریت پر ریلی نکالی گئی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری کی قیادت میں اسٹیٹ بینک تا ریگل چوک ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں کشمیری عوام کے حق میں نعرے بازی اور بھارتی مظالم کی مذمت کی گئی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق جائز ہے اگر حماس اور کشمیری جنگ لڑیں۔ پوری دنیا کے لوگوں کو فلسطینیوں کی پشت پر کھڑا ہونا چاہیے، اہل غزہ کی پشت پر کھڑا ہونا چاہیے، اور اسی طرح کشمیریوں کی آزادی کی اس تحریک کا ساتھ دینا چاہیے۔ سب سے بڑی ذمہ داری اب پاکستان کی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بات نہ بتائیں کہ ہماری معیشت کمزور ہے، اس نے ہمیں $1 بلین دیا، اس کی بات سنیں گے۔ دوسرے نے $1.5 بلین دیا، اس کی بات سنیں گے۔ تیسری نے ایک وعدہ فردا کر دیا، اس کی بھی بات سنیں گے۔ یہ ڈالروں سے پالیسیاں نہیں بنتی ہیں۔ اپنی قوم کی پالیسیوں کو آزاد کرو، لوگوں کو انصاف فراہم کرو۔ ضیاء الدین انصاری نے کہا کہ اظہار یکجہتی ایک دن کا احتجاج نہیں، ایک مسلسل تحریک ہے۔ ہم ہر محاذ پر کشمیریوں کا مقدمہ لڑیں گے۔ کشمیر کی آزادی کے راستے میں قربان کر کے، اس لیے اس بات پر توجہ دو کہ کشمیر کو جب تک بزور بازو آزاد نہیں کرایا جا سکتا، اس وقت کشمیر کے ساتھ پاکستان کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ ریلی میں 25,000 افراد کے لیے خصوصی نشستوں کا انتظام کیا گیا۔ مال روڈ اور اطراف میں ٹریفک معطل ہونے سے شہریوں کو متبادل راستے فراہم کیے گئے۔ یکجہتی کشمیر ریلی کے اختتام پر شہدائے کشمیر و فلسطین، عالم اسلام اور وطن عزیز کی سلامیت و بقا کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42۔ یوم یکجہتی کشمیر جوش و جذبے سے منایا گیا۔ لاہور میں ریلیاں، سیمینار اور خصوصی تقاریب کا انعقاد۔
यौम यकजहती कश्मीर जोशो जज्बे से मनाया गया। लाहौर में रैलियां, सेमिनार और खुसूसी तकारीब का इह्तिमाम किया गया। यूईटी में यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई। रैली में यूईटी में जेर तालीम मकबूजा कश्मीर के तलबा ने कश्मीरी लिबास जेबे तन किए हुए थे। तलबा ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। शुरका ने कहा कि कश्मीर में आजादी का सूरज जल्द तुलू होगा। भारत को कश्मीरियों पर ढाए गए मजालिम का हिसाब देना होगा। नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड में यकजहती वॉक का इह्तिमाम किया गया। मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर हुमैरा बुज़दार, डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर स्टाफ ने शिरकत की। शुरका ने कश्मीरी अवाम की लाजवाल कुर्बानियों को सराहा और उनके हक के खुद इरादियत की भरपूर हिमायत का इजहार किया। मॉडल बाजार टाउनशिप में यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर शहरी कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए इकट्ठे हुए और रैली निकाली। चेयरमैन पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी अफजल खोखर ने कहा कि अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर पब्लिक सेक्रेटेरिएट मरगजार सोसाइटी में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। तकरीब में सुहेल अनवर राना, मलिक काशिफ खोखर, चौधरी परवेज इकबाल, मलिक रियाज आवान, मलिक मजहर आवान समेत दीगर ने भी शिरकत की। यौम यकजहती कश्मीर पर दाता दरबार में तकरीब खुसूसी दुआ का इनेकाद। महकमा औकाफ व मजहबी उमूर पंजाब ने इह्तिमाम किया। तकरीब में सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी, खतीब दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी और एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार शेख जमील समेत दीगर ने शिरकत की। मिली रिक्शा यूनियन की जानिब से यकजहती कश्मीर कारवां का इनेकाद हुआ। अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से नासिर बाग से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली गई। मरकजी जमीयत अहले हदीस के दफ्तर रावी रोड पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। मिली रक्षा यूनियन की जानिब से यकजहती कश्मीर कारवां का इनेकाद हुआ। सदर मिली रक्षा यूनियन राना शमशाद की कयादत में रैली चौक चुबुर्जी से शुरू हुई। अपने मुकर्रर रास्तों से होती हुई मॉल रोड और फिर एजर्टन रोड पहुंची। कश्मीरियों से यकजहती के लिए नारे लगाए गए। हमारी जो आज की ये मिली रक्षा यूनियन की रैली है, जो हज़ारों की तादाद में माल रोड के ऊपर हमारे मजदूर लाहौर के रिक्शा ड्राइवर इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ अपने कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए कि हम ये दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीरी अकेले नहीं है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान के मजदूर और ख़ास तौर पर लाहौर के जो रिक्शा ड्राइवर हैं वो कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। अवामी रक्षा यूनियन की यौम यकजहती कश्मीर रैली नासिर बाग से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली गई। शुरका ने कहा कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है। अवामी लोडर रक्षा यूनियन, अवामी बाइक राइडर्स यूनियन के हजारों कारकुनान ने भी शिरकत की। यौम यकजहती कश्मीर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की रैली कयादत अमीर TLP साद रिजवी ने की। रैली में TLP के कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। कारकुनान ने कश्मीर के झंडे उठा रखे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कश्मीर डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद नाखुदा चौक पर किया गया। चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब आलिया हमजा की खुसूसी शिरकत। शुरका ने कहा कि कश्मीर में आजादी का सूरज जल्द तुलू होगा। भारत को मजालिम का हिसाब देना होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टिकट कटाओ, लाइन बनाओ। क्रिकेट के शेदाइयों का टिकट काउंटर्स पर रश। गुलबर्ग, बरकत मार्केट, जौहर टाउन में लाइनें। DHA बहरिया टाउन और शाहदरा समेत 25 आउटलेट्स पर कितारें हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टिकट कटाओ, लेन बनाओ। दिन भर क्रिकेट के शुदाइयों का टिकट काउंटर्स पर रश रहा। गुलबर्ग, बरकत मार्केट, जौहर टाउन में शहरियों ने टिकट हासिल किए। DHA बहरिया टाउन और शाहदरा समेत 25 आउटलेट्स पर भी शहरियों की कतारें लगी रहीं। 40% ऑनलाइन और 60% फिजिकल टिकट्स फरोख्त के लिए पेश किए गए। फर्स्ट क्लास की टिकटों की कीमत 2000 से 4500 रुपए रखी गई है। प्रीमियम क्लास की टिकट की कीमत 4000 से 7000 रुपए मुकर्रर की गई है। VIP क्लास टिकट 6000 से 12000 रुपए में दस्तयाब है। VVIP क्लास की टिकट 8000 से 18000 रुपए में मिलेगी। VVIP न्यू इंक्लोजर्स टिकट की कीमत 10000 से 20000 रुपए रखी गई। गैलरी की टिकट की कीमत 12500 रुपए से 25000 मुकर्रर की गई है। लाहौर न्यूजीलैंड के मैच की टिकट लेने के लिए आया हूँ, जो ट्राई सीरीज के लिए, और चैंपियन ट्रॉफी की टिकट भी लेने के लिए आया हूँ। और क्योंकि ऑनलाइन तो शो ही नहीं कर रहा, ऑनलाइन बहुत ट्राई की है। इधर तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया यहाँ पे खड़े हैं टिकट्स के लिए, लेकिन अभी फिलहाल लाइनें आपके सामने हैं। और पहले तो हम 2-3 दिन से बहुत हमें टेंशन थी, हमें टिकटों का पता ही नहीं चल रहा था कहाँ से मिल रही है और कहाँ से ये दे रहे हैं। ऑनलाइन में हमें टिकटें मिल नहीं रही, वो फुल बता रहे हैं। आज हमें पता चला कि ये TCS वाले टिकटें मिल रही हैं। आज हम आधा घंटा हो गया लाइन में खड़े हुए। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के लिए हमने मैच देखना है,
اور इंशाल्लाह अभी मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे मैच में। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए TCS सेंटर के पिकअप मराकज से 7 फरवरी को दोपहर 4 बजे से ऑनलाइन बुक होने वाली फिजिकल टिकट्स मिलना शुरू होंगी। ऑनलाइन टिकट्स बुक करवाने वाले शहरी मुल्क के 13 शहरों में कायम 37 मराकज से टिकट हासिल करेंगे। ऑनलाइन टिकट्स बुक करवाने के बाद वसूल करना जरूरी है। इसके बगैर मैच देखने के लिए स्टेडियम में दाखिला मुमकिन नहीं हो सकेगा। लैपटॉप स्कीम के लिए अहलियत का मियाद तय। यूनिवर्सिटी तलबा के लिए 20,000, कॉलेज के लिए 14,000 लैपटॉप मुख्तस। यूनिवर्सिटीज के 20,000 तलबा को लैपटॉप मिलेंगे। कॉलेजेस के 14,000 तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। टेक्निकल और एग्रीकल्चर तलबा के लिए 4,000 मुख्तस किए गए हैं। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के 2,000 तलबा में लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। पंजाब CM लैपटॉप स्कीम 2025 अहलियत का मयार पॉलिसी तय पा गई। स्कीम के तहत कंप्यूटर साइंस, तिब, इंजीनियरिंग, समाजी उलूम के तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। कारोबार, ज़राअत, मुतालिया के दीगर तलबा को भी लैपटॉप फ्राहम किए जाएंगे। स्कीम के तहत पंजाब भर के मैट्रिक से पोस्ट ग्रेजुएट सतह तक मुस्तहिक तलबा को 1 लाख लैपटॉप दिए जाएंगे। हुकूमत ने 2,000 अकलियती तलबा को लैपटॉप फ्राहम करने का भी वादा किया। तलबा में कोर i7 प्रोसेसर्स के साथ 13वें जनरेशन के लैपटॉप तकसीम होंगे। लैपटॉप स्कीम 2025 के लिए अहल तलबा का डाटा तालीमी इदारों के जरिए इकट्ठा किया जाएगा। तालीमी इदारे तालीमी कारकर्दगी की बुनियाद पर अहल तलबा का डाटा इकट्ठा करेंगे। HEC पंजाब मुंतखब तलबा की हतमी फहरिस्त की तस्दीक और जारी करेगा। लैपटॉप की तकसीम रमजानुल मुबारक के बाद शुरू की जाएगी। सोना मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1 तोला सोना 3 लाख की हद को छूने लगा। सोने की कीमत में आज फिर से 6,000 रुपये इजाफा। 2 दिन में सोने की कीमत 9,500 रुपये बढ़ गई। खालिस 24 कैरात सोना 2,99,000 रुपये तोला हो गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल, पंजाब में तरक्याती अमल और अवामी खिदमत के मनसूबों पर गौर किया गया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से गुजरांवाला, नारवाल, सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली ने मुलाकात की। नवाज शरीफ ने कहा कि महंगाई की रफ्तार में कमी मुआशी बेहतरी का इशारा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ विफाक में बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। मरियम नवाज वज़ीर आला से बढ़कर पंजाब में एक माँ और बेटी के जज्बे से काम कर रही हैं। मरियम नवाज ने कहा कि अवामी खिदमत के म्यार और रफ्तार के जरिए मुस्लिम लीग नून की माजी की रवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरी HEC ऑल पाकिस्तान इंटरवर्सिटी ख्वातीन बॉक्सिंग चैंपियनशिप UMT और हायर एजुकेशन कमीशन का इश्तिराक मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों की ख्वातीन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। चैंपियनशिप में UMT पंजाब यूनिवर्सिटी, GCU, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, FCCU समेत दीगर ने हिस्सा लिया। तकरीब में हेड UMT ऑफिस ऑफ स्टूडेंट सफ़ीर अली मुख्तार और हेड स्पोर्ट्स सैयद मुस्तफ़ा समेत तुलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। तर्जमान UET के मुताबिक मेंस बॉक्सिंग में पहली पोजीशन के बाद अब UMT ख्वातीन की बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी कर रही है। एक्सपो सेंटर में 5 रोज़ा बैनुल-अक़वामी किताब मेला सज गया। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग ने इफ्तिताह किया। किताब मेले में 240 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए। एक्सपो सेंटर में 5 रोज़ा बैनुल-अक़वामी किताब मेला सज गया। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग ने इफ्तिताह किया। इस्लामी, तारीखी, अदबी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुश्तमिल किताबें खरीदने के लिए कुतुब बीनी के शौकीन अफराद का रश लग गया। किताब मेले में स्टेशनरी और मुख्तलिफ लिखारियों की कहानियों से सजे स्टॉल बच्चों की दिलचस्पी का बाइस बने रहे। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग ने किताब मेले के इनेकाद को खुशैन करार देते हुए कहा, तरक्की के लिए किताबों से लगाव और इल्म होना बहुत जरूरी है। हमें चाहिए कि अपने ज़हन रसाद को उसकी परवरिश करें और ये उसी वक्त मुमकिन है जब इल्म की तहसील करें। आई थिंक ये आज का जो बुक फेयर है, मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। किताबों के शौकीन अफराद का कहना था कि जो मज़ा किताब खरीद कर पढ़ने में है वो ऑनलाइन पढ़ने में नहीं। बुक रीडिंग जो है उसका एक अपना चार्म है और उसमें आपको मतलब एक और जो आप मोबाइल पे देखते हैं उसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। सारे बुक्स है यहाँ पे, उर्दू में भी है, अंग्रेजी में भी है, सारे लैंग्वेजेस, सारे all types of books for all types of different people. ठीक है, तो these events are important because I mean Lahore is as big as a community to have these events in the first place. बच्चों का कहना था साल में 2 बार किताब मेला होना चाहिए। मुझे बुक फेयर में आके बहुत अच्छा लगा है। इस तरह की एक्टिविटीज होती रहनी चाहिए और बच्चों की यहाँ पे बहुत अच्छी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।